His introduction is noteworthy, so please pay attention. Rajat Mangla is a partner in Shyam Sundar Mangla and Company, LLP, Chartered Accountants, having its head office at Faridabad and branches in Delhi and Gurgaon. In less than 8 years' career, Rajat has become recognized. Rajat is recognized for his contribution and expertise as a knowledgeable professional, advisor, and consultant in the field of financial consultancy and tax advisory. He has been involved in strategy audit and internal audit of major corporate clients in industries such as textiles, engineering, publishing, paper, travel, software, power, healthcare, media, and banks. He also has experience in corporate laws, GST, due diligence, value, and IFRS advisory matters. He has been serving the entrepreneurs in varied areas by educating them through trainings and seminars. He also represents trade and industry at various levels of government to highlight issues pertaining to GST. He has pursued his professional goals as an active member while simultaneously working on social platforms as well. His operational experience and contacts span the spectrum of big corporates, seed stage ventures, and NGOs. Other attributes: member of Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce and Industry, certified as accredited GST trainer by National Academy of Customs, Excise and Narcotics, Faridabad. Rajat is also speaker on various educational and professional platforms and shares his views on GST and other related topics at many professional and industrial forums, including PhD Chamber of Commerce and Industry. So over to you, Rajatji. Welcome, a warm welcome to you. Over to you. Please start your presentation if you like. Thank you, Mohitji. Am I audible? Yes, sir, you are. Sir, now we can't hear you. Yeah, so can I start now? Yes, please. Oh, thank you. So I hope everybody is on mute, and can you please allow me to share my screen so that I can share my presentation? Yes, shared. Rajat, you can share your screen. Is it visible now? Is it visible now? Yes, sir, visible. Okay, thank you. And how much time do I have, Mohitji? Around? You have 1 hour exact, so we need to finish by 10:30. Okay, thank you so much. So, good morning, everyone, and myself, C. Rajat Mangla. And first of all, thanks a lot to Manzil Platform and especially Mohitji for inviting me to address you all on this topic of financial health checkup in your business. And it's really, I think most of us are in the lockdown and strategizing in this time for the coming period. And especially finance is the area जिस पर regular timings में ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा. So I think this is right now the best time to understand and go deep inside what we have done in last year, particularly 2021, and strategize for the coming time, and regularly then keep reviewing your books of accounts. So my idea for today's presentation these will be the takeaways from this webinar. The mistakes versus truth of financial health. क्या क्या गलतियां एक कॉमन बिजनेसमैन अपने फाइनेंस एरिया में करते हैं और लेकिन उसकी सच्चाई क्या है.
क्या क्या अकाउंटिंग मिस्टेक्स बिजनेसेस के अंदर होती हैं जो कि रेगुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, फाइनेंशियली इम्पैक्ट करती हैं। एंड देन आई हैव अ सैंपल फाइनेंशियल MIS व्हिच आई विल शो यू कि इस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट योर फॉर्मेट कैन बी एनीवन। मतलब किसी भी तरह का फॉर्मेट आपके बिजनेस में आपके फाइनेंसेस को स्टडी करने के लिए हो सकता है, बट होना जरूरी है। तो एक आइडिया देने के लिए एक सैंपल प्रेजेंटेशन मेरे पास में, एक सैंपल एक्सेल है जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि कैसे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को हम रिव्यू कर सकते हैं। एंड देन यू कैन देन टेक सम आइडिया फ्रॉम देयर एंड आपकी खुद के भी पहले से कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ ना कुछ एक्सेल या अदर फॉर्मेट में डिटेल्स होंगी ही। Starting with the mistakes and truths of the financial health check. Before I start with this topic, I would like to ask you a question. आप में से कितने लोग मुझे पिछले साल के जो कि FY 2021 है उसकी ये फिगर्स मुझे दे सकते हैं? आपके पास अगर है, मतलब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज एनीथिंग। देने का मतलब ये है कि आप में से कितने लोग रेडी है इस इंफॉर्मेशन के साथ में जो कि अभी साल गया है वो। वन मिस्टर अनुज जी सेइंग यस। अपार्ट फ्रॉम अनुज जी, हाउ मेनी अदर्स डू हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल रेडीली विद यू? एंड रेडी मीन्स कि आपकी बुक्स क्लोज हो गई हैं, सारी एंट्रीज डल गई हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जानी चाहिए स्टॉक फाइनल हो गया है, और उसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे डल गए हैं, GST रिकंसिलिएशंस कंप्लीट हो गए हैं, है ना। और जो फर्स्ट ट्रायल इज रेडी, फर्स्ट ट्रायल इज रेडी। ओके, कुछ लोग यस कह रहे हैं, एक पंकज जी ने बोला है फर्स्ट ट्रायल इज रेडी, देन इट इज गुड। तो जितने भी लोगों ने यस बोला है, आई थिंक दे आर क्वाइट ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, जिनकी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, फिगर्स उनके हाथ में है, और उनको पता है कि पिछले साल का परफॉर्मेंस उनका कैसा गया है। तो उनके लिए जो लोग ये बिकॉज ऑफ कोविड सम डिले, उनके लिए यहाँ पर हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी लगे कि वो आप पहले से कर रहे हैं तो इतना ज्यादा वो चीज में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ध्यान से सुने, और जो लोगों का मैसेजेस नहीं आया है उनके लिए और ज्यादा जरूरत है कि वो और ज्यादा ध्यान दें। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स, हम लोगों को ना, आप मार्केट में देखिएगा कि लोगों को फाइनेंस से भागने की आदत है। वो लोगों को ये लगता है कि फाइनेंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको ना अकाउंटेंट पर छोड़ दें, और जितनी जैसे वो अकाउंटिंग कर रहा है, जैसे वो एंट्रीज डाल रहा है, वो जैसे बुक्स प्रेजेंट कर रहा है वो करे, बट हमारा ध्यान तो सेल्स पर होना चाहिए, बिकॉज सेल्स से ही बिजनेस आएगा और सेल्स से ही बिजनेस की ग्रोथ होगी। कितने लोगों को रियली में यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइनेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फाइनेंस, जिसको हमें जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उसे अवॉइड किया जा सके। डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में फाइनेंस जो है वो शायद पीछे रह जाता है, और क्या शायद यही वजह है कि जब हम अपनी बुक्स को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो, और जब ऑडिट के टाइम आते हैं एंड जब फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का टाइम आता है, तो बस ये ध्यान दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में कि ड्यू डेट कब है और कब जो है वो आगे बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली वो इतना डिले हो जाए। और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स की या बैलेंस शीट की लास्ट डेट के आसपास होती है, 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि शायद बहुत सारे लोग उसको डिले करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी तरफ इतना ज्यादा उस टाइम पर जब ध्यान देना चाहिए तब देते नहीं है, अदरवाइज ऐसा सिनेरियो होता नहीं।
ये प्रैक्टिकल है। आप कभी भी न्यूज में भी देखिएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ऑल दीज बैलेंस शीट्स आर फाइल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5, 10, 15 डेज ऑफ द ड्यू डेट, ड्यूरिंग द ड्यू डेट पीरियड। वो मार्च का, जैसे वो सितंबर या अक्टूबर में जब भी ड्यू डेट आता है तब फाइलिंग करते हैं। Yes, the truth is that business cannot run without it. बिजनेस जो है वो बिना फाइनेंस के रन ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि पैसा तो सेल्स से कमा लेंगे, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है, यूटिलाइजेशन उसकी कहां पर हो रही है, वो चीज तो हमें फाइनेंस ही बताएगा, उसके अलावा कोई और बता नहीं सकता। अनदर मिस्टेक, जब रिव्यू करना शुरू भी करते हैं या ये सोचते हैं कि फाइनेंस में देखते हैं कि क्या हो रहा है, अपने अकाउंट की सिचुएशन चेक करते हैं, तो देखते हैं हाँ मेरी सेल्स बढ़ रही है, मैंने पिछले साल 10 करोड़ की सेल करी थी, या पिछले मंथ मैंने 5 करोड़ की सेल करी थी, इस मंथ मैंने 7 करोड़ की सेल करी है, तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो हम एक इल्यूजन में चले जाते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ तब होती है जब सेल्स में ग्रोथ होती है, जबकि शायद ऐसा नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इंक्रीज इन सेल्स डज नॉट मीन प्रोग्रेस? इंक्रीज इन सेल्स डज नॉट रियली मीन प्रोग्रेस। इट इज ऑल अबाउट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। मैंने पिछले साल आफ्टर एक्सपेंसेस क्या कमाया, मैं घर क्या लेके गया अपने, मेरे बैंक अकाउंट में फाइनली बैलेंस कितना बचा आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस। बट many a times we have a mindset that if somebody is growing in sales, or if I myself I am growing in sales, then business is progressing. Even after many people keep saying कि प्रॉफिट्स पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा चलो प्रॉफिट्स पर भी ध्यान देते हैं, तो प्रॉफिट का समझ में आता है कि ओनली प्रॉफिट का मतलब क्या, प्रॉफिट एज पर P&L ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरा 100 करोड़ का बिजनेस है, मेरी टर्नओवर 100 करोड़ की है, और मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो क्या वाकई में 5 करोड़ मेरी जेब में है? तो मैं बस केवल उसको देख के खुश हो जाऊं कि हाँ मैंने पिछले साल में 5 करोड़ अर्न कर लिए, तो अब इसका मतलब मैं तो 5 करोड़ के मेरे हाथ में आ गए। इज इट ट्रू दैट शुड वी रियली स्टॉप एट seeing our profits which are there in the P&L and be happy if they are in line with what our estimates are? Please tell me. Pankaj ji is saying profit earned is almost never in bank. Is it the situation with others also? Please reply, please send message. This is a virtual platform, nobody is there in front of me physically. तो मुझे अपने आप को एनर्जेटिक रखने में थोड़ा सा और ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। राइट सुनील जी, प्रॉफिट इज इन आउटस्टैंडिंग स्टॉक एक्सेट्रा। So to see the real picture, we really have to see what is the profit as per P&L as well as what are you earning in cash. क्योंकि पूरे साल धंधा तो बहुत किया, बिजनेस तो बहुत किया, सेल्स तो बहुत की, लेकिन किया क्या? सारा का सारा आउटस्टैंडिंग्स में चला गया, डेटर्स में खड़ा हो गया, डेटर्स भी बढ़ गए, सेल्स भी बढ़ गई और स्टॉक भी बढ़ गया। तो या तो पैसा लिया कस्टमर से और वो स्टॉक में डाल दिया, या फिर पैसा कमाया और डेटर ने पैसा ही नहीं दिया। तो अगर हमने ये एनालाइज नहीं किया कि कितना पैसा कमाया और जो कमाया वो क्या मेरी पॉकेट में आया कि नहीं आया, तो वो फिर हाफ रिव्यू हो गया, वो पूरा रिव्यू नहीं हुआ। बिकॉज वो फिर हम एक अगेन एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहेंगे कि इतनी सेल्स करी, सेल्स में ग्रोथ है, यस देयर हैज बीन अ वेरी गुड ग्रोथ इन सेल्स, profits have also increased, but have you ever seen how much your debtors are increasing and how much your stock is increasing? If not, then it is not a full-fledged review.
You are not reviewing the books completely. And if you say that I don't have time to review all this, if somebody in business say I don't have time to review all this, then please let me tell you, then if that business owner is in an illusion, because the first prime motive of starting the business was to earn profit, was to have money in their bank account. And if that is not coming in the bank account, then what is the objective of continuing with this business? So it's time that those people who are really not concerned or who are not really getting into these things, they please spare some time on all these, because otherwise होगा क्या कि ultimately business तो कर रहे होंगे, but वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ चलो बिजनेस करना चाहिए, इसलिए बिजनेस कर रहे होंगे. अब many business owners don't take salary from their business, thinking कि ये मेरा तो बिजनेस है, और जब मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस से मैं सैलरी लूं या मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमाए, दोनों बात तो एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं और मेरा बिजनेस एक, तो मेरी सैलरी या फिर कंपनी का प्रॉफिट एक ही बात है, बट दोनों में डिफरेंस है. कितने लोग आप में से यहां पे सैलरी ले रहे हैं बिजनेस से? How many people are really taking salary which is equivalent to what you would have been taking had this not been your business, which should be equivalent to the salary amount which you would have been taking had this been not your business. आप अगर किसी और के बिजनेस में इतना ही एफर्ट लगा रहे होते और उतनी सैलरी आपको वहां से मिल रही होती, तो उतनी सैलरी आपको इस बिजनेस से भी लेनी जरूरी है, या एस्टिमेट करना जरूरी है कि इतनी सैलरी मैं इस बिजनेस से निकाल सकता हूं, इतनी सैलरी मैं इस बिजनेस से निकाल सकता हूं. Those of you are really doing a great job, because the truth is the salary is a reward for your individual efforts. जो आप दिन रात बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस बिजनेस में अगर आपके 100 लोग काम कर रहे हैं तो आप अकेले पर्सन हैं जो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सैलरी उसका रिवॉर्ड है. और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो बिजनेस रिवॉर्ड दे रहा है ना, कि जो आपने आइडिया इन्वॉल्व किया, आइडिया में पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट्स करी, जो मार्केट के अंदर आपने दिखाया कि ये सारी चीजें मैं सेल कर सकता हूं, उसके बाद बिजनेस ने अपने आप के एक्सपेंडिचर को रिमूव करके, एक्सपेंडिचर को हटा के जो फाइनली बच के दिया, दैट इज प्रॉफिट, एंड इट इज नोवेयर लिंक्ड टू सैलरी. सैलरी इज सेपरेट, प्रॉफिट इज सेपरेट. So sometimes many people mix these two terms, salary and the profit, which we really should not do. And sometimes what happens is we use our company bank account in many businesses for the personal expenses, and then while reviewing the profit we see that personal इसके अंदर include हो रखे हैं, और इसके अंदर क्या है कि वो फिर business profit नहीं दे रहा है इतना, not understanding that business expenses and personal expenses are separate. Even if you are using company accounts for paying your personal expenses, you need to separate them out to see how the business is working, because profit is only calculated after considering the business expenses. Now this is a real pain in every business. You go to an accountant and ask कि भाई साहब क्या कर रहे हो? पहले 10 तारीख तक सर GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ, 20th तक GSTR 3 भी कर रहा हूँ, या ESI PF फिल कर रहा हूँ, TDS कर रहा हूँ, 6 तारीख को TDS फिल कर रहा हूँ. The entire month goes into compliance, या तो टैक्स की कंप्लायंस, या PF की कंप्लायंस, या ESI की कंप्लायंस, या GST की कंप्लायंस. पूरा का पूरा महीना टैक्सेशन कंप्लायंस इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है. Without realizing
even that accountant is also not realizing कि जो तेरा job है, if any of the accountants are here to please understand कि आपका जो job है वो compliance से कहीं ऊपर उठ के है, but जो accounts team है वो उस mindset से कई बार कई जगह नहीं उठ पाते ऊपर कि हम लोग केवल compliance करने के लिए नहीं बने हैं. We are not here to just keep paying taxes to the government on time and filing returns on time. We are here to analyze the data because it is the barometer of business financial success. How many of you agree with me on this? Accounts is not only about compliance, but many of the times why we are not able to analyze our profit, why we are not able to, we really want to, as a business owner, we really want to see how in which direction my company is going. But when we go to our accounts team, they say टाइम इतना लगता है अकाउंट्स के अंदर कंप्लायंस करने में, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, परचेज के बिल नहीं चढ़ाए, सेल्स कंप्लीट नहीं हुई, अभी मार्केटिंग वालों से अभी स्टॉक फाइनल नहीं किया. तो ऑल दीज थिंग्स टेक अप सो मच ऑफ टाइम कि जो क्वालिटी टाइम अकाउंट्स के अंदर स्पेंड करना चाहिए एक अकाउंट्स पर्सन को एज वेल एज अ बिजनेस ओनर को, वो हो ही नहीं पाता. तो उसके लिए अकाउंटेंट को और हमें खुद को ये समझना पड़ेगा कि कंप्लायंस और टैक्सेशन अकाउंटिंग का एक पार्ट है. अकाउंट्स खत्म नहीं हो जाता टैक्सेशन तक. जब ये समझेंगे, जब हमें ये अंदाजा होगा कि डेटा एनालिटिक्स कितना जरूरी है हमारे बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, तो अकाउंटेंट भी डेवलप करेगा अपने आप में जो सीएफओ पोजीशन तक जाने के लिए. अकाउंटेंट को भी ये समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीजें से बढ़कर ये इंपॉर्टेंट है कि मैं बिजनेस ओनर को ये प्रेजेंट करूं कि पिछले साल उसने कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले महीने उसने कितना, इनफैक्ट साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, पिछले महीने उसने कितने प्रॉफिट्स कमाए, उसका डेटर्स का क्या सिचुएशन है, रिसीवेबल्स की पोजीशन क्या है, रिसीवेबल्स की एजिंग कितनी है, क्रेडिटर्स की क्या पोजीशन है, पैसा किन किन लोगों से आना है और अगले महीने की बजटेड एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या हम एज अ बिजनेस अगले महीने के एक्सपेंसेस के साथ में सरवाइव कर पाएंगे या हम अपनी ओडी लिमिट को यूज करेंगे. बिकॉज होता क्या है, अगर हम इतना डीपली एनालाइज नहीं करते इन सब चीजों को, तो सपोज करो बैंक वाला आया और उसने बोला कि साहब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई वांट टू ऑफर यू ए बैंक ओडी लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट. वी स्टार्ट विद अ स्मॉल ओडी लिमिट एंड बस उसकी जो बैंक ओडी लिमिट की जो एक उसके अंदर एक इतनी पावर होती है कि वो हमें इस तरफ ध्यान नहीं देने देती कई बार कि वो शुरुआत हुई 10 लाख से और होते होते साल के एंड तक वो 20, 25, 30 और उससे भी बियॉन्ड कभी चली गई, एंड विदाउट वी रियलाइजिंग कि ये एक्सपेंसेस इतने ज्यादा ये बैंक ओडी के थ्रू क्यों हो गए, क्योंकि हमने ये तो पूरे साल ध्यान ही नहीं दिया कि जो पैसा बैंक ओडी की तरफ से यूज कर रहे थे वो शायद अगर टाइमली डेटर से रिसीवेबल से बात करके पैसा निकालते या स्टॉक के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो शायद बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट इतनी नहीं बढ़ती. तो हो क्या रहा है कि एक तरफ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया बैंक ओडी लिमिट से और दूसरी तरफ डेटर्स एंड स्टॉक की तरफ ध्यान नहीं दिया, बिकॉज अकाउंट्स टीम तो कंप्लायंस में बैठी है, उसके पास तो और कोई टाइम ही नहीं है और कोई चीज करने का. तो वी रियली नीड टू फोकस ऑन दिस. Another big mistake. Most of you are here in a private limited concept, and in a private limited it is a mandate to have your books of accounts audited once in a year, and that's why many people go to their CA, to their auditors to get their books finalized after the year end and get their income tax returns and balance sheet filed without realizing that they are really not taking the full advantage of their chartered accountant. आपने अगर पूरे साल में अपने सीए के साथ में जो कि आपके कंसल्टेंट हैं टाइमली रेगुलरली मीटिंग्स नहीं करी, उनके थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई टाइमली नहीं कराए, तो ईयर एंड के बाद तो इट इज ऑल पोस्टमार्टम. ही रियली कैन नॉट हेल्प यू, ही कैन ओनली हेल्प इन कंप्लायंस. आपने क्या गलत कर दिया, आपकी टीम क्या गलत कर रही है, आपकी टीम क्या सही कर रही है, क्या मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, आप कहां खड़े हैं. Your auditors can be your best advisor if you take their help timely. Please
Do you agree with me on this aspect or not? Many of the business owners are only going to their chartered accountants or their consultants or their auditors only at the last moment, just for getting their returns filed. That is why the pressure is so much high on the chartered accountant firms at the last time. Really very high. अब आज COVID period है, we really are following up with our client that please send books of account in whatever form they are to us, so that we can review, our team can review right now and guide you. Many of them are really not caring, even though they have the business running and they have their accountants coming to office in some cases, but really their books are really not complete, so they are not in a position to send them. And some of the business owners are not bothered about what's going on in their accounts, and they are only bothered when the last moment comes. टैक्स कितना भरना है, प्रॉफिट कितना दिखाना है, स्टॉक कितना करना है, उन्हीं सब चीजों से थोड़ी बिजनेस ग्रो करेगा. We really need to take help of our auditors, whoever is your consultant, because mandate है गवर्नमेंट से कि साल में एक बार कराना है. And let me tell you, because of this there is a recent change in the Companies Act, and it is really a very welcome change, that in case of unlisted companies also, the regulator will ask now for periodic financial statements. मतलब पहले साल की स्टेटमेंट्स दे मांगते थे, बट अब वो हो सकता है क्वार्टरली मांगे और हो सकता है हाफ ईयरली मांगे, जैसे वो लिस्टेड कंपनीज के केस में मांगते थे. डेफिनेटली द गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड अ पावर विद देम कि वो सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी करने जा रही है. एंड आई थिंक ओनली व्हेन द गवर्नमेंट विल मैंडेट दिस, ना कि 6 महीने में एक बार बैलेंस शीट बनाना है या क्वार्टर में एक बार बैलेंस शीट बनाना है, then every business will become very particular about all these things, because government is becoming strict, and very recently, only 2 months back, this provision has come in Companies Act. So for companies, certain class of companies, not every company, because they also understand this will involve a lot of cost also, because audit also has to be done. So certain class of companies will now be required to do this. Coming on to the common accounting and internal control mistakes, which really impact your financial MIS. But before I move on to this topic, which will take me another 10 minutes, please tell me, what have you learned till now? If anything has been useful to you in the discussion of last 20-25 minutes, please tell me, please write down, so that I also know that I am providing, I am giving you some new info, I am giving you something of useful to you. Please type in something. I heard there is a new provision regarding audit trail. Yes, it is there, but it has been deferred by 1 year. Where are the profits, salary for self, regular checks? Yes. Thank you, Sunil ji. Thank you, Manzil India. This is really big problem in MSME sector, which they are not realizing. उन्होंने realize नहीं किया, businesses ने realize नहीं किया, और ये problem realize करी government ने, regulator ने 24 मार्च को 2021. Now, what is this problem actually? Most of us are using Tally and not understanding that we have allowed all kind of controls to their account, to our accountants. तुझे आज जाके एक साल पहले की डेट में भी एंट्री डालनी है तो तू डाल, 6 महीने पहले की बुक्स को भी खराब करना है तो कर, स्टॉक परचेज को डिलीट करना है कर सकता है, एक्सपेंसेस नहीं डाले 6 महीने पहले डाल सकता है, because you have all the rights. And these accounting softwares, they are so and this kind of control, it is so easy for the accountant कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है. And you are not realizing कि जैसे ही सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है तो बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर हो गया. तो अगर आपने आज फाइनेंशियल MIS बनाया, सब कुछ सेट किया और बोला कि जी आज मैंने
4 करोड़ की सेल्स करी इस महीने में, पिछले महीने में, एंड पिछले महीने में मेरे ये एक्सपेंसेस थे, ये परचेज थी, मेरा प्रॉफिट आ गया 30 लाख। 6 महीने बाद वही महीना जाके देखा तो उसमें प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा है। तो पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले साहब वो ना स्टोर टीम से ना 3 महीने बाद के लाए थे, तो हमने अब चढ़ाए हैं पिछली डेट में जाके। तो फायदा क्या हुआ आपके MIS देखने का उस टाइम पे? तो सारी एक्सरसाइज ही बेकार हो गई। आपने जो डिसीजन लिए उस टाइम पर, जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो सोचा कि यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ पाएंगे ये सब चीजें देख के, तो वो सब चीजें तो आपकी बेकार हो गई, बिकॉज आपने उस चीज पर आप ध्यान ही नहीं दे पाए। तो I really request you to see whether you have given any permissions to pass backdated entries in your accounting software, which is the case in most of the clients which we deal, which we keep on saying to them कि backdated entries का control please हटाइए, और अगर रखना भी है तो एक टाइम लिमिट कर दीजिए कि पिछले 1 महीने तक की एंट्रीज आप डाल सकते हो या 15 डेज की डाल सकते हो, and if at all there is a genuine case, then another person should have the control, and then he should then give control to the accountant whenever it is required. गवर्नमेंट ने भी ये चीज समझाने की कोशिश करी है इस बार। अब इस बार 24 मार्च को जब MCA ने, जो कि रेगुलेटर है कंपनी का, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि यू हैव टू यूज ओनली दैट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स यू एन ऑडिट ट्रेल, कि ये एंट्री कब और कैसे आपने डिलीट करी तो वो पता चल सके। वो ऑडिट ट्रेल हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होनी जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी कर दी शायद, और सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जो मतलब जो सॉफ्टवेयर थे वो सब परेशान हो गए कि अब ये होगा कैसे, कि 24 मार्च को बोला है और 1 अप्रैल से इसको चालू करना है। टेली एंड ऑल वो सबने अपने क्लाइंट्स को मेल डाला कि वी डू हैव अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल सिस्टम इन आवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज इट, एंड बट पीपल वर नॉट रेडी। कोई भी रेडी नहीं था इसके लिए, एंड देन रिप्रेजेंटेशंस वेंट टू द गवर्नमेंट एंड दे डिलेड इट बाय 1 ईयर कि चलो ये वाली कंप्लायंस हम 1 साल बाद आपके लिए कर देते हैं। बट it was really a welcome change, and it really opened the eyes of everyone that government can go to this extent. They now want, even the auditors have to report in their audit report that whether the company has an accounting software which has the facility of audit trail, and nobody during the year has the right to remove that audit trail. To that extent the government is trying to go, and you see it is in your favor only. For them they are seeing it from the point of view of fraud, कि किसी ने कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर दी, कोई फेक एंट्रीज, कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया। बट यू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, यू आर डूइंग अ जेन्युइन बिजनेस, एंड इफ ऑल योर ट्रांजैक्शंस आर फेयर, देन इट इज अ कंट्रोल फॉर यू। आज कहीं कल को उसने उठा के सारे महीनों की एंट्री डिलीट कर दी, व्हाट विल यू डू एट द एंड? You can't do anything because we are so much heavily dependent on our accountants. Documentation is bad in many businesses. GST return filed, no backup or no linking how it has been filed. So once this accountant goes in, 6 महीने बाद कोई गया तो नया अकाउंटेंट आया तो वो बोलता है कि जब से मैं आया तो मेरे पास सारा कंट्रोल है, मुझे संतोष के साथ मिलके ना सारी लक्कड़ जो है छत पे चढ़वा। Friends, please mute yourselves. Do not. Priya, can you just mute people, please? 1 second. This is Anuj. He's on it. Yeah. 1 second. Thank you. Actually, I'm not able to hear properly without my earphones because there's some problem in this audio. But we can hear you, sir. So go ahead, go right ahead. No problem. Yeah, please tell me. I'm saying continue, sir. Continue. Okay. So documentation is bad in many businesses, and recently it was a really big company and sales was really very high,
and their accountant left 6 months ago. We were doing a GST audit over there, and they did not have the backup of how their GST returns were filed. जो फिगर्स जीएसटी रिटर्न्स में गई हुई थी, वो फिगर्स और बुक्स की फिगर मैच नहीं कर रही थी. दैट इज ओके, देयर कैन बी सम रीजन, बट वो रीजन किसी को पता ही नहीं था. चलो आज तो हम ऑडिटर हैं, हम आपसे पूछें, टुमारो द गवर्नमेंट विल कम एंड आस्क हाउ दीस रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड एंड what is the backup of this. Nobody has the detail right now because their accountant has left and they really don't have information, and this has happened in really big companies because they were not really serious about documentation. This is also an important part which really we have to see. Then comes the GST and TDS returns. We really many of the cases we are filing it manually without taking advantage of the software, because वो information फिर software के अंदर से फाइल करते हैं तो वहीं से रहती है. ये भी एक प्रॉब्लम है. And on account payment to creditors. So this will also go away very soon. अभी क्या करते हैं, पेमेंट करनी है सप्लायर को, ले जा भाई 50,000 का बिल है, 30,000 रुपए ले जा, एंट्री डाल दी ऑन अकाउंट, बिल से एडजस्ट ही नहीं करी किसी के. तो उसके बाद में बिजनेस ओनर ने बोला कि आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो वो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग अवेलेबल ही नहीं है. बिल वाइज आउटस्टैंडिंग इज अवेलेबल ही नहीं है, ना डेटर्स की है ना क्रेडिटर्स की है. Now company law has become very strict, and from 1st April 2021 they are now requiring aging schedule of all your debtors and creditors in the balance sheet. Aging means you have to clearly demarcate 0 to 30 days, 30 to 60, 60 to 180 like this. कि आपके creditors और जो debtors हैं, जो receivables and payables हैं, उनकी एजिंग क्या है, वो कितने पुराने हैं, वो आपको बताना पड़ेगा. तो जब आप ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि आपका बिल आए, 10 बिल आए आपके सप्लायर से और आपने बिल वाइज पेमेंट नहीं करी, उसको रैंडमली 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख रुपए दे दिए और उसकी एंट्री डाल दी बस बुक्स के अंदर. लेटर ऑन जब अकाउंट्स रिकंसाइल करने बैठे तो हमें पता ही नहीं है कि उसके कौन से बिल्स उससे लेने हैं, हमें कौन से बिल्स के पैसे देने हैं, उसे कौन से बिल्स के लेने हैं, एंड लेटर ऑन फिर उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है. And same way we do it in many of them do, sir, Pankaj ji, many of the people do this, and we really don't have structured system of payment to vendor. Vendor की पेमेंट करनी है तो मंथ के शुरुआत में हमने प्लानिंग नहीं करी कि इन वेंडर्स की पेमेंट करेंगे, सपोज करो. उसकी वजह से होता क्या है कि अकाउंट्स टीम का फेवरेटिज्म आ जाता है कहीं कहीं, कि अकाउंट टीम को लगता है कि ये वेंडर मेरा खास है या फिर ये वेंडर जो है ये रेगुलर सप्लाई करता है तो इसको पहले पेमेंट करा देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि पहले किसी की पेमेंट होनी चाहिए थी जेन्युइनली. तो उसके साथ योर रिलेशनशिप विद वेंडर्स आल्सो गो बैड. सो वी रियली हैव टू हैव अ गुड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट टू वेंडर्स सो दैट टाइमली पेमेंट. हमारी इंटेंशन मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर की ये नहीं होती है कि हमें पेमेंट रोकनी है, बट क्या होता है हमारे पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती है, इस वजह से किसी की पेमेंट पहले हो जाती है, किसी की बाद में हो जाती है, किसी की लटकी रह जाती है. I think companies have already limits with bank have to provide details to bank. Yes, banks को provide करते हैं, but banks को क्या provide करते हैं, वो banks और books आपस में match नहीं करते. And there is a recent provision in the company law wherein auditors will have to now report whether the information given to bank matches with the information coming in books of accounts or not, because अभी तक कई बार स्टॉक रिपोर्ट वहां पे जाती थी, वो मैच नहीं करती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आ रहा है उससे. Then we really don't have system of budgeting, and this I have already talked about. Reconciliation statement, bank reconciliation properly नहीं बने होते हैं कई बार. After all this, all these common mistakes which I have shared with you, now I will present you a format, a financial MIS format, which I would like to show, and then you can then decide, you can take ideas from it, or based on that आप अपना कोई MIS prepare कर सकते हैं, because it is all about customization, and it is really not a very big rocket science कि ये prepare करना मुश्किल है. जो accounting softwares हैं, Tally, Busy, all these give really good balance sheet and trial balance and profit and loss, so that can be utilized with
small amount of changes you can do in your Google Sheets or Excel, and to get information what you really want. So this is a case wherein one of our clients, we took the help of Tally and took out the information, and then after getting that information, we tried to present it in a summary form. So before I start, I really want to know how many of you want me to show that. Should I go further and discuss about the MIS, Management Information System? आप लोग अगर yes बोलेंगे तो आगे मैं continue करता हूँ. Please. Yes, sir. Absolutely, sir. People are waiting. They will be very interested. Thank you, sir. Thank you. This is a sample management information system which we have prepared, but ये एक summary है. अब summary के अंदर ना बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चलेंगी आपको, आपके business की भी. मजा आएगा जब आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे, बट पहले मैं आपको समरी समझाता हूं और उसके बाद में आपको डिटेल्स में लेके जाता हूं. एक बिजनेस की जनवरी, फरवरी एंड मार्च की सेल कितनी है? दिस इज द रेवेन्यू फिगर. ओके, दीज आर द रेवेन्यू. इसकी डिटेल में अगर जाना है आपको तो सेल्स को हमें केवल इसी लेवल पे एनालाइज करें तो नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी. आपको इसके फर्दर डिटेल में जाना चाहिए. इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं डाली हुई है, बट मैं आपको बताता हूं इसके अंदर आप कितना डिटेल में जा सकते हैं. If you have a product wise revenue, then you can segregate into products. कि आपका X आइटम से इतना आता है, Y आइटम से इतना आता है, Z आइटम से इतना आता है. You can go further and do it zonal wise. हरियाणा से इतनी सेल, दिल्ली से इतनी सेल, महाराष्ट्र से इतनी सेल. If you have zones divided, or you can have product revenue, service revenue separately. तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका जो रेवेन्यू है वो कहां पे, किस एरिया में बढ़ रहा है, किस प्रोडक्ट से आप ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट से आप कम बिजनेस कर रहे हैं. वो सारी चीजें आपको जब भी पता चल पाएंगी. वेरिएबल कॉस्ट सिंपल मीनिंग, जिसको जो डिपेंडेंट है सेल्स पे, जितनी ज्यादा सेल उतनी ज्यादा कॉस्ट, उतनी कम सेल उतनी कम कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ब्रिंग्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. बट वेरिएबल कॉस्ट की भी जो उसका असली रोल है वो है आप जब उसकी डिटेल में जाते हैं, व्हिच इज दिस, कि मैंने पिछले महीने में कितनी परचेज करी थी, फरवरी में, मार्च में, जैन में. नाउ यू हैव here numbers in front of you which can tell you where you are heading. आप जा किस तरफ रहे हैं, परचेज किस तरफ हो रही है. then this is about freight cost, commission. This is really very particular to the figures which we had in that business, labor charges and financial expenses, then some TOD, and you can have any number of items in this based on your business. But the idea is to show you कि आपके पास जब इस तरह से फिगर्स होंगी तो उन फिगर्स से आप एनालिसिस कर पाएंगे. वो फिगर्स आपको हेल्प करेंगी कि आप उनको ढंग से रिव्यू कर पाएं. That's great, Pankaj, if you are making it monthly. Moving further, then you have some fixed cost in business, जैसे कि रेंट है, उसकी भी डिटेल होनी चाहिए हमारे पास में. ये है डिटेल. Salary is a very big component in everyone's business. Then you have rent, ESI, professional fees, director remuneration, legal and professional expenses, software charges and interest, membership fee, installation expenses,
electricity charges, communication expenses, all these are kind of expenses which we keep on showing in our balance sheet, and it is nothing, just a summary of what, and it is all linked to trial balance. तो यहाँ पे ना मैनुअल फीडिंग की जरूरत नहीं है, please understand. All these figures have been linked to trial balance, and it is a one-time job of grouping all these expenses in a particular category. And once this is done, then it is really very simple to get it prepared every month. So it might be a one-time job for your accountant to put all these put efforts in preparing this, और एक बार ये बन गया अगर, तो उसके बाद में टाइम नहीं लगाने की जरूरत है इस पे. आप शायद पूरे महीने का या एक दिन भी नहीं लगेगा, इसकी ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो जाएगी आपके अकाउंट टीम के थ्रू, एंड आपके पास आ जाएगी. एंड बिकॉज एवरी डेटा इज लिंक्ड टू अ ट्रायल बैलेंस, यू कैन सी द फॉर्मूलाज ओवर हियर. So this kind of sheet can be prepared, and it has been prepared with the use of simple some of these Excel formulas which most of the people know. So there is nothing very complicated नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. It's just कि consistency चाहिए and एक will चाहिए कि इसको हमें करना है. Once you have the revenue figure, variable cost and fixed cost, you then have the net profit margin. So for every month you can see कि मेरी revenue क्या रहा, मेरी variable cost क्या रही, मेरी fixed cost क्या रही, और finally मैंने profit कितना earn किया, and then in percentage terms also. Not limiting yourself to this. This is the only this area we have only dealt with, wherein with these figures we have only dealt with P&L, profit and loss account. Coming on to some key balance sheet items, you can have further details based on what figures are important in your balance sheet. But ये accounts payable की ना, यहाँ पे आप फिगर देखिए, जैसे ये creditors हैं, अब इसकी फिगर देखिए हमने किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया था. We gave them these figures party wise, and these are the figures. और इनका ना देखिए आप मंथली ये रिड्यूस हो रहे हैं या फिर ये सेम लेवल पर हैं, यहाँ से आपको पता चल सकता है. तो आपको क्लैरिटी आ सकती है कि क्या ये फिगर्स वाकई में जेन्युइन भी हैं. कई बार ऐसा होता है वो बिल्स नहीं डाल पाते प्रॉपर्ली, या फिर पेमेंट दिखाई नहीं होती, किसी की किसी में डाल दी अगर सपोज करो, तो आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है. और अगर आपके बहुत सारे वेंडर्स हैं, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज फॉर टॉप वेंडर्स and then segregate them into a particular category if you don't want to see all the vendors list like this. And in same way we prepared the list of advance to some of the companies. They have to give advances to the companies, so this is the list of advances. Then in some cases this is the advance from debtors. कोई अगर कस्टमर से बैलेंस आया हुआ है मंथली बेसिस पे, तो वो कितना मूव हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. दिस इज द डेटर बैलेंस. कस्टमर रिसीवेबल बैलेंस, वो मंथली मूव हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या कितना बैलेंस आ रहा है. एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन कोई मैनुअल फीडिंग नहीं है, सिंपल टैली से निकाला हुआ है और उसको जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट किया है. दिस इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टैली ओनली, एंड दीज आर दी फिगर्स. Okay, so these are the key balance sheet items. Then inventory के अंदर आप फर्दर जा सकते हो कि आपके अगर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं और आप प्रॉपर्ली स्टॉक्स को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे मैनेज कर रहे हैं, तो उनका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है मंथली बेसिस पे. एंड देन दिस इज द वर्किंग कैपिटल. एंड मूविंग फ्रॉम द बैलेंस शीट आइटम, तो दिस इज द P&L. ये P&L समरी हो गई, ये बैलेंस शीट आइटम्स की समरी हो गई, और उसके बाद आती है कैश फ्लो की समरी, जो कि मैं कह रहा था कि आपने अल्टीमेटली कैश के अंदर क्या ग्रोथ करी. सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. These are the receipts, and these are the payments, and this is the closing balance. इसकी फर्दर डिटेल में जैसे जाना है आपको, अकाउंट्स रिसीवेबल से कितना पैसा लिया, तो अगेन वो रिसीट एंड पेमेंट्स, ये दिस इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी टैली से आएगा, ये सब टैली से ही निकलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. और इसके अंदर आप फर्दर इसके अंदर जा सकते हैं कि आपने मंथली कितना
कितना उसके अंदर आपने बेसिकली कैश अर्न किया है। So I'll discuss with Mohit ji and then share about this, no problem, this format. And just to summarize the information, this is the closing opening balance. यहाँ से कहाँ से रिसीविंग हुई, कहाँ से पेमेंट्स, कहाँ हमने पेमेंट्स करी और क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस आया। और यही नहीं, अब जैसे पेमेंट्स करी है आपने फिक्स कॉस्ट की, तो अभी हमने जो पीछे देखा था ये वाला मैटर ये था कि मैंने दो आइटम्स हैं इसके अंदर कि ये P&L में मैंने कितना रेंट पे किया, P&L मतलब कि मेरा इस महीने का खर्चा कितना हुआ, और मैंने एक्चुअली में कैश में कितनी पेमेंट करी। सैलरी की मैंने कैश में पेमेंट करी 5,24,000 और मेरा इस महीने का खर्चा हुआ 6,20,000। क्योंकि इन दोनों में फर्क इसलिए होता है बिकॉज लास्ट मंथ की सैलरी मैं पे करता हूँ इस महीने और इस महीने की मैं बुकिंग करता हूँ अपने P&L अकाउंट में, तो उन दोनों में फर्क डेफिनेटली रहेगा। देन देयर आर सर्टेन रीजंस कि मैं सैलरी बुक कर देता हूँ लेकिन उसके बाद में मैं पेमेंट नहीं करता क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है उसका मेरा फुल एंड फाइनल होना बाकी है या व्हाटएवर दीस रीजंस कैन बी। तो आपने कैश बेसिस पे कौन कौन से एक्सपेंसेस करे उसकी डिटेल भी आपके पास होना जरूरी है, टू लेट यू नो कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैश में कितना हो रहा है। और ये डिटेल्स आप देखिए रॉ मटेरियल में मैंने कैश में कितनी पेमेंट करी है अपने रॉ मटेरियल वाले वेंडर्स को अपनी, और ये एवरेज बेसिस पे मंथली में कितनी पेमेंट कर रहा हूं वो डिटेल। And the objective of entire these sheets are, it is really very difficult to grasp all this in one go, but objective is कि आप जो है इस पूरी सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप करें, और अगर आप कर रहे हैं तो मिस आउट कर रहे हैं अगर किसी चीज को तो उसको आप इंक्लूड करें इसके अंदर। And my humble request to each one of you is that whatever format you can start with, whatever information analysis you can do, start doing it because before it is too late, because it is all your data only, और आपको ही it is your duty, it is your responsibility to review your books of accounts in a summarized way. It is not required that you have to be a chartered accountant or an accountant to review all this. From a business point of view, you can always have a look at these figures, but the objective is to have a look. And in my entire presentation of last 50 minutes, I have been telling this again and again that it is important to review the financial summary, financial figures on a regular basis to have an idea in which direction your business is going. So this is, and we also prepared a GST summary. So this is the GST summary कि पूरे महीने में जैसे अगले महीने रिटर्न फाइल हुई तो पता नहीं चलता कि सेल के ऊपर टैक्स कितना था, तो ये इतना परसेंटेज टैक्स था, और मैंने जो उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस किए उसके ऊपर मैंने प्रॉपर्ली इनपुट टैक्स क्योंकि मुझे उससे एडजस्ट करना है वो मैंने लिया कि नहीं लिया। तो नॉर्मली अगर मैं 18% ब्रैकेट में फॉल करता हूँ और मेरे एक्सपेंसेस भी 18% ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो आइडियली जो मैंने एक्सपेंसेस करे हैं उनका 18% शुड बी माय इनपुट, बट वो है कि नहीं है बिकॉज मेरा अकाउंटेंट तो बस मंथ एंड 20 तारीख को आ जाएगा बोलने के लिए कि इतना टैक्स पेमेंट करना है कर दो, बट उसको एनालाइज करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि मैंने प्रॉपर्ली इनपुट क्लेम किया है कि नहीं किया। मेरे सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट है कि उनको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर सारे बिल्स चढ़ाने हैं, तो उन्होंने वो कितना चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए, कितने बिल्स अपलोड करे हैं, should I then release their payment or not if they are not filing their returns properly, because this has also become a business challenge these days that GST has to be paid by supplier, otherwise I am liable. So this is a small GST summary which we prepared. About input credit on common expenses, since we have taxable and no taxable billing, and then you need to segregate them. अगर आपके कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो आपको उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, एंड देन उसको आपको, बिकॉज कॉमन एक्सपेंसेस पर वैसे भी दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, उसके अंदर वैसे भी कॉमन एक्सपेंसेस में आपको जो नो जीएसटी वाली बिलिंग होती है टू दैट एक्सटेंट आपको इनपुट रिवर्स करना होता है, तो आपको वो सेपरेट आउट करके रिव्यू करना पड़ेगा। एंड
So this is all for my this financial summary sheet which I had to share. And coming back to my presentation, इतने से टाइम माय ऑब्जेक्टिव वाज टू जस्ट शो यू कि इस तरह से इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी अपना कोई फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो दैट इज रियली वेरी गुड. आपको अगर इसमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जो कि आप अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं तो आपको वो करनी चाहिए. एंड नेक्स्ट स्टेप जो कि एक्चुअल्स को वेरीफाई करने के बाद में होता है वो होता है बजटिंग करने का. अगर आप में से कोई बहुत पहले से अपने फिगर्स की बजटिंग कर रहे हैं देन वेल एंड गुड. अगर नहीं कर रहे हैं तो क्राइटेरिया ये होता है कि आप शुरुआत में पहले साल, पहले 6 महीने, 9 महीने अपने एक्चुअल फिगर्स को रिव्यू करना स्टार्ट करें. आपने एक बार ही अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल रेवेन्यूज को एनालाइज करना शुरू कर दिया, उसके बाद में देन नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विद बजटिंग. बजटिंग का मतलब ये है कि आप फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरा ये रेंट होगा, ये मेरी सैलरी होगी, ये मेरा रेवेन्यू होगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल दीज बजट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स, हिस्टोरिकल फिगर्स. अगर आपके पास पुराना डेटा करेक्ट है तो ये आप आगे की फिगर्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड देन टेक रियली वेरी गुड डिसीजंस बेस्ड ऑन योर बजट कि मुझे एक्सपेंसेस रियली में कितने करने हैं कि नहीं करने. अगर मैं कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूं तो वो मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अभी. अगर मैं कोई मशीनरी परचेज करने की सोच रहा हूं तो डू रियली आई हैव द मनी टू परचेज दैट और विल आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक. या फिर मेरी जो सिचुएशन है वो आज से अगले 1 साल में मैं कितने प्रॉफिट्स में रहूंगा. हो सकता है मुझे कोई अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो मेरा बिजनेस मुझे कितना पैसा दे देगा जिसकी वजह से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ 1 साल बाद मेरे बिजनेस से मुझे इतने पैसे मिल ही जाएंगे. देन आई कैन थिंक ऑफ दिस पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हिच आई हैव बीन डिलेइंग. तो बजटिंग करने से कई सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं जो कि हम माइंड में लेके घूम रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे क्लैरिटी ऑफ फिगर्स नहीं होते. But this you should do only if you have correct historical data, and you will have correct historical data only when you will start reviewing it regularly. So right now this is not the objective. Last but not the least, I have already told you that please involve your auditors to have a look at your books of accounts, have a look at your financial summary, because let me tell you, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपकी अकाउंट्स टीम ने इंफॉर्मेशन गलत फीड करी है उसके अंदर तो वो इंफॉर्मेशन आपकी समराइज्ड वे में भी रिजल्ट आपको सही नहीं देगी. देन हियर कम्स द रोल ऑफ योर ऑडिटर दैट दे कम एंड रिव्यू डीप डाइव इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सी whether everything is going correctly or not, and so that you are sure that your financial summary is coming out properly. Otherwise you will only be dependent on your accounts team for this information. And see, we all are humans and there can be errors. Even if they are doing the best of they can, there can really be errors. So there has to be a maker checker approach in everything we do, and this is the way which government designed years back to have an audit system. And this audit system is really to help you, and this audit system is not to comply and file the balance sheet at the last moment. It is to help you, your business, to grow, to have correct financial figures. Now I have given you all the information. If you can do it by your own, it is really very good. If you do it with the help of your accountant, with the help of anybody, it is really good. Just in case you need my help in this, any support which I can give, I am available. And the objective is that you should start doing this. And I prepared a small form. You can fill in your 2-3 information in this form, and so that we can connect. Let me just share that. And I would also, so before sharing the form, I would like to know, with this entire presentation of almost 55 minutes, only 4 minutes are left, it will be 10:30. आपको आज पूरी presentation में
क्या अच्छा लगा जो कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंस एरिया में कल से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, शायद अब तक नहीं कर रहे थे। आई वुड बी ब्लेस्ड अगर आप एक भी चीज यहाँ से लेके जाएंगे, मुझे लगेगा कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ ऐड किया। एंड thank you so much. MIS is needed. MIS is definitely needed, and there are various other mistakes which people do. Yes, analyzing the data beyond sale is very important, and reviewing the MIS is really very important. This is the form which I have prepared. You can just put in the information over here, mobile number, email ID, and if you want to get in touch, and then I would try to help in whatever way I can. And thank you everyone for patient hearing, and thank you Mohit ji, Manzil team for inviting me again. And over to you, Mohit ji, now.